السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمس اکیڈمی یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد معین اللہ انصاری آپ کے لیے UGC نیٹ دسمبر 2025 میں پوچھے گئے سوالات کا پرچہ لے کر کے آیا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال دعویٰ دلیل ہے۔ کافی سوال پوچھے گئے ہیں دعویٰ دلیل سے، دیکھتے ہیں۔ ذیل میں ایک دعویٰ ہے اور اس کی ایک دلیل دی گئی ہے، ان کو پڑھیے اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ کیا ہے؟ سورداس برج بھاشا کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس نے برج بھاشا میں رام چرتر مانس جیسا شاہکار تخلیق کیا۔ تو دعویٰ تو درست ہے مگر دلیل جو ہے اس کی دلیل درست نہیں ہے۔ تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 3۔ اگلا دیکھتے ہیں۔ نظم شکست زندہ کا خواب جوش ملیح آبادی کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ بہت ہی آسان سا سوال تھا یہ، تو ان کا جو صحیح جواب ہو جائے گا شعلہ و شبنم۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اخبار کی ادارتی صفحہ پر اخبار کے نام کی تختی کے نیچے شائع ہونے والا مضمون کیا کہلاتا ہے؟ آپشن اے میں کالم، آپشن بی میں ہے بین الاقوامی خبر، آپشن 3 ہے فیچر، آپشن 4 ہے اداریہ۔ تو ان کا جو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 4۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ رسائل دیے گئے ہیں، ان کے مدیر کے نام دیے گئے ہیں اور صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ لسٹ 1 ہے، لسٹ 2 ہے، تو ان کا صحیح جواب ہو جائے گا 54 کا آپ کا صحیح جواب ہے 4 ہے، اس کا مطلب یہ 54 کا 4، جس کو آپ ملا لیجئے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ حکایت نصیحت گری مرغ اسیر و نافہمی صیاد کی ذیل کس مثنوی میں شامل ہے؟ آپشن اے میں بکٹ کہانی، آپشن 2 ہے قدم راؤ پدم راؤ، آپشن 3 ہے گلزار نسیم، آپشن 4 ہے سحر البیاں۔ تو ان کا جو صحیح جواب ہو جائے گا گلزار نسیم، 55 کا 3۔ آگے چلتے ہیں۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہے 2 غلط ہے، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو ان کا جو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی خدیجہ مستور اور شاہد احمد دہلوی کا چھٹا دریا، یعنی سی اور ڈی جو ہے آپ کا صحیح جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایہام کو برتنے کی اس شعوری کوشش کی وجہ سے نازی کی شاعری جذبہ و احساس سے عاری ہو گئی، یہ قول کس کا ہے؟ یہ جمیل جالبی کا یہ قول ہے۔ آپشن نمبر 4 ان کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ نظم ذوق و شوق کے ابتدائی حصے میں کس شہر کی منظر کشی کی گئی ہے؟ تو ان کا جو ہے مدینہ منورہ ان کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ پیدائش کے اعتبار سے ناقدین ادب کی صحیح زمانی ترتیب کی نشاندہی کیجیے، یعنی پیدائش کے اعتبار سب سے پہلے کون پیدا ہوئے تھے؟ تو ان کی جو صحیح ترتیب جو ہے 59 کا ہو جائے گا 2 کا سب سے پہلے ترتیب ہے اے الطاف حسین حالی، اس کے بعد جو ہے ڈی شبلی نعمانی، اس کے بعد سی احتسام حسین، اس کے بعد بی شمس الرحمان فاروقی، یہ صحیح ترتیب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 2 زمرے صحیح ہے 2 غلط ہے، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو ان کا جو صحیح جواب ہو جائے گا بی اور ڈی۔ لسانیاتی جائزہ ہند کے مرتب جارج ابراہیم گریسن ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ غیرت بیگم نذیر احمد کے کس ناول کا کردار ہے؟ تو ایامی آپشن اے میں ہے، آپشن 2 ہے فسانہ مبتلا، آپشن 3 ہے بنات الناس، آپشن 4 ہے رویائے صادقہ۔ تو ان کا جو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 2 فسانہ مبتلا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اردو کو زبان کے معنی میں استعمال کرنے کی قدیم ترین مثال کس شاعر کے دیوان میں ملتی ہے؟ تو ان کا جو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 2 دیوان میر محمدی مائل کے۔ اگلا دیکھتے ہیں۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہے 2 غلط، صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو ان کا جو صحیح جواب ہو جائے گا 63 کا ہو جائے گا 3، 63 کا جو ہے 3 میں اے این ڈی
ये दोनों सही है। अगला देखते हैं, कदीम उर्दू अदब पर तहकीकी काम सबसे पहले किसने शुरू किया? तो इनका जो सही जवाब हो जाए गारसा, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, किताबों के मुसन्निफ, किताब और किताबों के मुसन्निफ का नाम दिए गए हैं। तो उर्दू मसनविया शुमाली हिंद में, ये तो बहुत ही आसान है, ज्ञानचंद जैन की किताब है। और इसी तरीके से आपको मिलाना होगा 65 का जो सही जवाब होगा 65 का। इसी तरीके से उर्दू मसनविया गोपी चंद रारा की किताब है। अब्दुल कादिर सरवरी की जो किताब है, इनका जो है 65 का 1 हो जाएगा सही जवाब। पैंसठ का 1 यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। अगला देखते हैं, जेल में दिया गया शायरों और उनकी नज़मों की सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। खाके हिंद यानी 66 का जो आपका जवाब हो जाएगा 1, 66 का 1। ए का 3, मिराजी की नज़्म कहाँ है? कलर का नगमा मोहब्बत। बी का 4 इस्माइल मेरेठी का हो जाएगा आसार सलफ। सी का 1 हो जाएगा बिरज नारायण का खाके हिंद। नूर मीम राशिद का हसन कुजागर। ये सही तरतीब है। इसी तरीक़ा से फिर से क्या है, जोड़ जेल के मिसरों की दुरुस्त जोड़ लगाकर शेर मुकम्मल कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल ये भी है। क्या वो जी गया जो इश्क में जी से उतर गया, ठीक है। ईसा को हो नवेद के बीमार मर गया। उसी तरीके से बी का 1 इधर से इधर, इधर से इधर। इसी तरीके से आप जो है इनका जो सही जवाब हो जाएगा 67 का 67 का हो जाएगा आपका 2। आगे देखते हैं, दर्जा झेल ज़बानों की सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ देखते हैं, क्लासिकी संस्कृत, शोरसेनी प्राकृत, मगरबी हिंदी और पाली। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा क्लासिकी संस्कृत सबसे पुरानी ज़ुबान है, यानी ऑप्शन नंबर 68 का 3। आगे चलते हैं, जेल में 2 जुमले सही 2 गलत सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। 69 का हो जाएगा 4। AND नज़्म मुअर्रा में काफिया की पाबंदी नहीं होती है। नज़्म मुअर्रा को अंग्रेजी में ब्लैक वर्स कहते हैं। ये दोनों बात जो है बिल्कुल सही है। फिर से दावा दलील है। दावा क्या है? मुकदमा शेर व शायरी से कबल उर्दू में कोई तनकीदी तसव्वुरात नहीं मिलते। दलील क्या है? वजही ने अपनी मसनवी कुतुब मुश्तरी में शायरी के बारे में अपने तनकीदी ख्यालात का इजहार किया है। तो 70 का जो हो जाएगा 4। दावा और दलील दोनों दुरुस्त है। दलील दावा की दुरुस्त वजाहत है। आगे चलते हैं, फिर से क्या है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ज़र्म कली, पाली जिब्रील, अरमखान हिजाज, भांगी दरा। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो 71 का हो जाएगा आपका 1। ये जोड़ देख लीजिएगा। ए का 2 साकिनामा किसमें है? पाली जिब्रील में। बी का 1, सी का 4 और डी का 3। बहुत ही आसान सा सवाल है। इकबाल की नज़में हैं और इनके शेरी मजमूए का नाम दिए गए हैं और सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अगला सवाल देखते हैं, दर्ज झेल खुद नवेश्तियों की इशाअत के एतबार से सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। आशफ्ता बयानी मेरी, तारीख़ अजीब, इस आबाद खराबे में, अपनी तलाश में। तो 72 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2, BADC यानी बी उसके बाद डी उसके बाद BADC BADC ये सही तरतीब है। जेल के तहरीकें हैं
और उनको जोड़ना है कि किनका ताल्लुक किससे है। सज्जाद जहीर का ताल्लुक, जैसा कि हम जानते हैं सज्जाद जहीर का ताल्लुक कहाँ से, तरक्की पसंद तहरीक से था। जो आसान सा ही, दिल्ली कॉलेज का ताल्लुक कहाँ से है, अलीगढ़ तहरीक, मौलवी अलीगढ़ तहरीक से दिल्ली कॉलेज का ताल्लुक था। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 73 का 73 का 2, ए का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1। ये जो है सही तरतीब है। चलिए इनका आगे देखते हैं। 74 नंबर, मिसल ही से न अल्फाज तलाजुम से यह खाली है, हर एक फुकरा कहानी का गोह बेख्याली है, इस शेर से किस दास्तान का आगाज़ होता है। तो आराश महफिल इनका सही 74 का हो जाएगा फसाने अजायब। अगला सवाल एक पैरोडी है। अब पूछा गया किनका है, तो रज़ा नकवी वाही का ये पैरोडी है। अगला सवाल देखते हैं। दबस्तान लखनऊ के शोरा उनकी पैदाइश का मकाम दर्जे सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। एक तरफ क्या है, ए ऑप्शन ए में इंसान लखा इंसा नासिख पंडित देवशंकर नसीम मिर्जा जबीर, इधर फैजाबाद दिल्ली मुर्शिदाबाद लखनऊ। तो 76 का जो सही जवाब हो जाएगा 1। 78 में चलते हैं। 77 दावा दलील है। दावा की आग का दरिया उर्दू का एक शाहकार नावल है। दलील का यह मौजू अफन के मियार पर पूरा उतरता है। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा, दोनों बात बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। चुन्नू और मुन्नू प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार हैं। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सवांग। अगला सवाल देखते हैं। तारीख़ तसनीफ़ के एतबार से दर्ज झेल दास्तानों की सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए रानी कैतकी की कहानी, ऑप्शन बी बाग़ो बहार, ऑप्शन सी सबरस, ऑप्शन डी नव तर्ज मुरस्सा। तो 79 का 1। अगला सवाल देखते हैं। फिर से दावा, प्रेमचंद एक बड़े फिक्शन निगार थे। दलील क्या है, उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों में कहानियाँ लिखी। दावा तो सही है लेकिन दलील बिल्कुल गलत है। लेकिन दावा दलील दोनों सही है, लेकिन दलील जो है इनकी वजाहत नहीं कर रहे। दावा दलील दोनों दुरुस्त है मगर दलील दावा की वजाहत नहीं है। अगला देखते हैं। पैदाइश के एतबार से मुहक्किकीन की सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन बी काजी अब्दुल वदूद, ऑप्शन सी इम्तियाज़ अली हर्शी, ऑप्शन डी मसऊद हुसैन खान। तो 81 का हो जाएगा 1, ABCD। अगला सवाल फिर से दावा है और दलील है। दावा क्या है, शुमाली हिंद के शोरा ने अयहाम गोई का असर वली से अखज़ किया। दलील क्या है, शुमाली हिंद के शोरा सनत अयहाम से वाकिफ़ थे। तो 82 का हो जाएगा 2। दावा और दलील दोनों दुरुस्त है मगर दलील दावा की दुरुस्त वजाहत नहीं है। ये जो है बिल्कुल सही बात है। 82 83 नंबर हो जाएगा। प्रेमचंद के अफसान जेल में प्रेमचंद के नावल और उनका सन इशात है। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो 83 का हो जाएगा 2। 83 का 2। ए का 2 बेवा का, ए का 1927, ए का बी का 3, बी का 3 यहाँ है, बी का 3, सी का 4, डी का 1। इस तरीक़े से ये सही तरतीब है। और आगे अगला सवाल देखते हैं। सन वफ़ात के एतबार से मुसन्निफ़ीन के सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए कन्हैयालाल कपूर, ऑप्शन बी पतरस बुखारी, ऑप्शन सी सज्जाद हैदर यल्दरम, ऑप्शन डी मौलवी अब्दुल हक। तो 84 84 का हो जाएगा आपका सही जवाब 4, CBDA यानी सी
बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए। ये सही तरतीब है। अगला सवाल देखते हैं। खुश्क चश्मे के किनारे किसकी तसनीफ है? आउट ऑफ सिलेबस सवाल था, लेकिन नासिर काज़मी का सही जवाब है। 85 का। 86, झेल में 2 जुमले सही है 2 गलत, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। तो इनका जो सवाल जो है 86 का हो जाएगा आपका 1 ए एंड डी, साइनेट, शरिस्तान, रुबाई रूप। झेल में 2 जुमले सही है 2 गलत, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। 87 का हो जाएगा 4 बी एंड डी, बी एंड और डी, चकले, ताजमहल, गुरेज, चांद तारों का बन, हवेली, इनकलाब। ये दोनों जो है सही जवाब है। हम लोग देखते हैं। अगर किसी लफ्ज में दो कूज आवाजें आए तो उनमें से पहली कूज आवाज को दंदानी आवाज में बदल देना किस जुबान की इम्तियाजी सौती खसूसियत है? तो इनकी जो है दक्कनी लिसानी खसूसियात इन्हीं का है। अगला देखते हैं। झेल के शोरा के सने वफात के एतबार से सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। क्या है? मखदूम, ऑप्शन बी में मिराज, ऑप्शन सी नून मीम राशिद, ऑप्शन डी साहिल लुधियानवी। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा 89 का 2। अगला चलते हैं। गुबार खातिर में कुल कितने खतूत शामिल हैं? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 24। अगला सवाल। नज़ीर अकबर आबादी के नज़्म मुफलसी की हैयत क्या है? ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा मुखम्मस। अगला सवाल देखते हैं। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तल में है, ये शेर किस नज़्म से माखूज है? तो शाकी नामा इनका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं। करामत का मकान किस ड्रामे का एक सीन का उन्वान है? तो बहुत ही आसान सा सवाल था। यह है 93 का हो जाएगा 3 यहूदी की लड़की। अगला सवाल देखते हैं। झेल में किताबों मुसन्निफीन के नाम दिए गए हैं, उनकी सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। 94 का आपका हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब है। यानी एका 3 उर्दू कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा डॉक्टर महमूद इलाही की तसनीफ़ है। और बी का 1 उर्दू में कसीदा निगारी डॉक्टर अबू मोहम्मद सहर की है। सी का 4 तारीख़ क़साइद उर्दू, सी का 4 जलालुद्दीन अहमद जाफरी की है। और डी का 2 कसीदा असल हैयत और हुदूद ज़फ़र अहमद सिद्दीकी की किताब है। आगे चलते हैं। ये तो आसान सा सवाल था, इनका सही जवाब हो जाएगा इंसान खां इंसा। अगला देखते हैं। वली ने दिल्ली में किश के मशवरे पर अपने कलाम में दक्कनी के बजाय फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल किए थे? बहुत ही आसान सा सवाल था। सादुल्ला गुलशन, काफ़ी दफ़ा पूछे गए ये सवाल। हल्का रबाब ज़ाओ का क़याम कब अमल में आया? ये भी सवाल काफ़ी अच्छे सवाल थे। 16 अक्टूबर 1939 को। अगला सवाल देखते हैं। किताबें और उनके तराजिम दर्जे सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। नवतर्जम रस्सा ऐना, इधर है अखलाक़ हिंदी, हातिम ताई, चाहर दरवेश। इसी तरीके से इनका जो सही तरतीब बनेगा 98 की जो सही तरतीब है वो है 1 एका 3 बी का 4 सी का 1 और डी का 2। ये सही तरतीब है। आगे चलते हैं। बोस्तान खैर का दिबाचा किसने लिखा? काफ़ी दफ़ा पूछा गया सवाल। तो इनका सही जवाब हो जाएगा
اسد اللہ خاں غالب۔ خزانہ رحمت گزری زبان کی شاعر کی تصنیف ہے، تو ان کا جو جواب گا شیخ بہاؤالدین کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں تاریخ اشاعت کے اعتبار سے شہریار کے شعری مجموعے کے صحیح زمانی ترتیب کی نشاندہی کیجیے، تو ان کا جو صحیح جواب ہو جائے گا 101 کا 3 ہو جائے گا، CBAD۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، تاریخ اشاعت کے اعتبار سے فیض احمد فیض کے شعری مجموعے کے صحیح زمانی ترتیب کی نشاندہی کیجیے، 102 کا ہو جائے گا، 102 کا 4۔ نقش فریادی، اس کے بعد پھر جو ہے ڈی میں دست صبا، AD زندہ نامہ شام شہر، یہ صحیح ترتیب ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، پھر سے دعویٰ دلیل ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اردو تنقید کی تاریخ طویل عرصہ مشرقی شعریات کامر ہون۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی، آگے ہم لوگ اگلی ویڈیو میں اس کو مکمل کریں گے۔